سب سے پہلے بات کریں گے اسموگ کی۔ اسموگ کے باعث سب سے زیادہ تعلیم متاثر۔ حکومت کا تمام تعلیمی اداروں میں 2 چھٹیوں کا اعلان۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں جمعہ اور ہفتہ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ جمعہ اور ہفتہ مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اتوار کو ہر قسم کا کاروبار مکمل بند ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس بھی دینے کا اعلان سامنے آ گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسموگ کے باعث سب سے زیادہ تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ حکومت کا تمام تعلیمی اداروں میں 2 چھٹیوں کا اعلان۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں جمعہ اور ہفتے کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اتوار کو ہر قسم کا کاروبار مکمل بند ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس بھی دینے کا اعلان۔ جمعے اور ہفتے کو پنجاب کے 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کہ مصنوعی بارش سے متعلق بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ 10,000 طالب علموں کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس دینے کا بھی اعلان کیا۔ مارکیٹس ہم بالکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 بجے کھلیں گی۔ کسی بزنس مین کا کسی کا نقصان نہیں چاہتے، لیکن اس ٹائم ماحول کے لحاظ سے ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر بادل آئے جو آرٹیفیشل رین کے لیے موزوں ہوئے، سازگار ہوئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کریں، بٹ اس کے لیے ابھی ہمارا بہت پیچھے ہیں، ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے کلاؤڈ بھی ایک اسپیسیفک طرح کا چاہیے، اس کے بعد آپ وہ رین کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم تیاری شروع کر دی ہے ہم نے۔ ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ 10,000 اسٹوڈنٹس کو سبسڈی پہ موٹر بائکس دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو جتنی جلدی فائنل کر سکے گی، اپنی سجیشنز کر کے کیبنٹ میں دے گی۔ تو الیکٹرک بائکس جو ہیں 10,000 الیکٹرک بائک اسٹوڈنٹس کو ہم سبسڈی پہ دیں گے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے آگاہی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 2 اور 3 ویلر الیکٹرک موٹر سائیکلیں اور رکشوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وزیر صوبائی ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے معائنہ بھی کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسموگ کی روک تھام کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو متعارف کروانے کے لیے جو ہے وہ آج فلیٹس ہوٹل میں اس حوالے سے سیمینار کا انعقاد بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس میں یہ کہ جو میجورٹی ہے وہ گاڑیوں کی جگہ موٹر سائیکلز، چنچیز اور رکشاز ہیں، اور اسی لیے آج یہ ہم نے ایونٹ رکھا ہے، ان سے کنسلٹیٹیو سیشن رکھا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو ای رکشا، ای بائکس، ای چنچیز، ای لوڈرز کے مینوفیکچررز ہیں، ان کے کیا ایشوز ہیں اور اس کو کس طرح ہم پورے پنجاب میں ایک گرین ریولوشن کے تھرو عام کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، اکثر ڈرائیور سے جب بات کی جاتی ہے جن کی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری گاڑی میں جو ڈیزل ڈلتا ہے یہ اس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ لازمی ڈیزل والی گاڑی چھوڑے گی، تو اس کے حوالے سے کیا اب تک جو حکمت عملی ہے وہ بنائی گئی؟ جی، اس پہ بھی جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اسموگ پہ، اس پہ 2-3 بار ذکر ہوا ہے، اور کمشنر لاہور جو ہیں اس میں ایکٹیو ہیں، انہوں نے کافی کریک ڈاؤن کیا ہے جو ایلیگل پیٹرول ڈیزل آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبل آئل ریسائیکل کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم کافی جو ہے اسٹرکٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسی کوئی بھی ایلیگل سیل، پرچیز اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گی۔ جی بالکل، نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد صاحب کی آپ نے بات سننے کا یہی کہنا تھا کہ جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، جو ڈیزل پہ چلتی ہیں، ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کیبنٹ کی میٹنگ بھی جو ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ جو ریسائیکل کرتی ہیں پیٹرول، ان کی وجہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اب تک جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ساتھ کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے آج فلیٹس ہوٹل میں اس ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ان کو متعارف کروانے کے لیے آج گاہی سیمینار بھی جو ہے اس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ عدالت نے ملزم کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ
मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुलजिम की तफसीली तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के लिए वक्त दरकार है। उम्र के तयन का जुज़वी टेस्ट हुआ है, मुकम्मल टेस्ट के लिए भी वक्त दरकार है। तफ्तीशी अफसर पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अफनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया। आपको बता दें कि डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का ये केस है। अदालत ने मुलजिम का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम की तफसीली तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए वक्त दरकार है। उम्र के तयन का जुज़वी टेस्ट हुआ है, मुकम्मल टेस्ट के लिए वक्त दरकार है। और ख़बर है कि म्यू अस्पताल की एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स की अपग्रेडेशन का मामला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का म्यू अस्पताल की एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा, सहूलियात का जायज़ा लिया। डॉक्टर सलमान काज़मी का कहना है कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मरीज़ों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में हस्पतालों की सूरत हाल और कंडीशन को बेहतर करने के हवाले से तकरीबन 100 से ज़ायद जो हस्पताल हैं इनकी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की जा रही है। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से म्यू हॉस्पिटल का तफसीली जो है दौरा है ये भी किया गया। उनकी जानिब से जो म्यू हस्पताल की जो एमरजेंसी वार्ड है, आई वार्ड, घड़ी वार्ड और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका भी जायज़ा लिया। तो इस वक्त हमारे साथ म्यू हस्पताल के सीनियर डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किस किस्म की रेनोवेशन की जा रही है, कब तक मुतवक्किल है ये? देखें जी, इनकी टारगेट जो है इनको ख़त्म करने का वो 31 दिसंबर है सारे प्रोजेक्ट्स को। और CNW के जो सेक्रेटरी हैं और उनके साथ जो एक्सीएन है उनको वज़ीर आला साहब ने 2-3 दफ़ा यहाँ पे जब भी विज़िट करते हैं वो उन्हें यही कहते हैं कि आपने 31 दिसंबर तक पूरे करने हैं। ये वार्ड्स जिनमें पैसे लग रहे हैं, यहाँ कोई एक तो 1920 में टाइलें लगी थी, उसके बाद नहीं लगी। ENT की सारा फर्श उखड़ा हुआ था, वो सारी टाइल दोबारा लग जाएगी। एमरजेंसी के ऊपर वाले फ्लोर से पानी लीक होता था और नीचे गिरता था हॉल में, जिस वजह से बाल्टियाँ रखी होती थी। जो भी मरीज़ आता था वो कहता था कि ये बाल्टियाँ क्या, उस वजह से ये जो मेजर रीवैम्पिंग है इन एरियाज़ की, उनसे तो बहुत फ़ायदा होगा। आई वार्ड के अंदर बेसमेंट में पानी खड़ा होता था, उससे भी एक जब ब्लॉक की सीवरेज सिस्टम सारा तब्दील हो जाएगा तो शायद बेसमेंट का पानी ठीक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इन जो भी, और उसके अलावा 20,000 बेड्स गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है, जो कि अभी वज़ीर आला साहब ने भी देखे हैं। जितने भी वार्डों के बेड हैं हमारे वो टूटे हुए हैं, किसी को आप ऊपर करें तो ऊपर नहीं होता, मरीज़ पीछे तकिया 3-3 रख के ऊपर अपने आप को करता है। तो ये जो बेड ख़रीदना है, ये सामान स्ट्रेचर्स ख़रीदने हैं, स्ट्रेचर्स वो ख़रीद रहे हैं जिनके साथ साइड रेल है, यानी कि जिससे मरीज़ अगर बेहोश भी हो तो नीचे फ़र्श पे नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ें थी जो कि मेरे ख्याल है हर हुकूमत को ख़रीदनी चाहिए और ये हर 5-5 साल बाद ये सामान जो है आता रहना चाहिए हॉस्पिटल्स में। जी बिल्कुल, सहूलियात का फुकदान था मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर और म्यू हॉस्पिटल के अंदर भी जो इन सहूलियात हैं ये फ्राहम की जा रही हैं। नई एमरजेंसी भी रिवैम्प की जा रही है जिससे मरीज़ों को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ पंजाब भर के जो हस्पताल हैं इनमें जो टूटे फूटे बेड्स थे इनको भी चेंज किया जा रहा है। स्ट्रेचर्स के जो इशूज़ थे उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द ही जो रिवैम्पिंग है, अपग्रेडेशन, इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, अपडेट कर रहे थे आप। कस्टम्स में मुतादिद अफसरान और एहलकार तब्दील कर दिए गए हैं। FBR ने 8 अफसरान को मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट और कलेक्टोरेट में तैनात कर दिया है। सुप्रिटेंडेंट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंजुम शराज को सरगोदा रिपोर्ट करने का हुक्म। राहील अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। राहील, बताइएगा, अहम तकर्रियाँ की गई हैं। ये तारीख रिपोर्ट है। कस्टम डिपार्टमेंट में मुतअद्दिद अफसरान और सिपाहियों के तबादले जो है वो कर दिए गए। FBR ने 8 अफसरान को तब्दील करके मुख्तलिफ डेकोरेट में जो है उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि 7 तारीख की जानिब से रिपोर्ट दी गई थी कि ये अफसरान को जो है फौरी तौर पर उनकी जगहों से तब्दील किया जाए। कस्टम में अफसरान और सिपाहियों को तब्दील कर दिया गया। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट अंजुम शराज को सरगोदा, प्रिंसिपल अप्रेजर मलिक नज़ीर अनवर को डेकोरेट क्लियरेंस ऑडिट लाहौर तब्दील कर दिया गया। गेट 17 के कनौर को जो है डेकोरेट ऑफ कस्टम प्लेसमेंट वेस्ट लाहौर तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर नासिर शेख को कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर से एडमन पोल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इस वजह से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी भी कर दिया गया है। जी ठीक है राहील अली, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बर है कि लाहौर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। रवां साल अब तक 9,941 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 53 किलो से जायद आई से 150 किलो से जायद हीरोइन बरामद की गई है। DIG ऑपरेशंस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। ऑपरेशन में ये कार्रवाई की है। रवां साल क्रैकडाउन के दौरान 9,941 जो है मुसलमान
गिरफ्तार किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिरुद्दीन का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ थानों में मंशियात बरामदगी के पर जो है वो 9008 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान से 6240 किलोग्राम से ज्यादा चर्च है और उसके अलावा 150 किलो 288 ग्राम हेरोइन जो है वो भी बरामद की गई है। डीजी ऑपरेशन कहना है कि 53 किलो 275 ग्राम आइस और 1,42,000 लीटर से ज्यादा जो शराब है वो भी बरामद की गई है। सिटी डिवीजन ने 2104 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। कैंट डिवीजन ने जो है वो 2153, इसके अलावा सिविल लाइन डिवीजन ने 1070 जो है वो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस तरह से सब डिवीजन पुलिस ने भी कार्रवाई की है और सब डिवीजन पुलिस ने 1249 मुलजमान को गिरफ्तार किया। इकबाल टाउन ने 1451, जबकि माल टाउन डिवीजन ने 1904 जो है वो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इस वाले से डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम एसएचओ को मंशियात के खिलाफ मजीद कार्रवाई तेज करने का हुक्म जारी किया है। डीआईजी ऑपरेशन ने कहना है कि शहरी जो है खासतौर पर जो तलीमी इदारों की गिरदोनवाह में मंशियात फरोशी करते हैं, उस वाले से डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम एसएचओ को हुक्म दिया है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जो बड़े सरगना हैं, बड़े डीलर हैं मंशियात फरोशों के, मंशियात फरोश को गिरफ्तार करने का डीआईजी ऑपरेशन ने हुक्म दिया है। अगर देखा जाए तो जो पुलिस है वो छोटे जो मंशियात फरोश है उनको तो आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन जो बड़े मंशियात फरोश हैं, जो डीलर हैं, जो कि पूरे शहर में जो है मंशियात फरोशी करते हैं, उनको जो है वो पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी है। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन ने हुक्म दिया है कि बड़े मंशियात फरोशों को पकड़ा जाए ताकि जो मंशियात फरोशी का जो मकरू धंधा है उसको जो है वो रोका जा सके। ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास शहर भर में जारी पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एमडी वासा की तरक्याती मंसूबों में काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से तमाम तरक्याती इदारों को ये हदायत जारी की गई हैं कि शहर में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको फिलफौर मुकम्मल किया जाए। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब की इन्हीं हदायत पर अमल दरामद करते हुए एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनकी प्रोग्रेस के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वासा के शोबा इंजीनियरिंग और शोबा O&M की तरफ से जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। एमडी वासा की तरफ से अब तक जो काम हो चुका है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसके साथ साथ तमाम डायरेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई कि तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा तरक्याती मंसूबों पर इंसदाद स्मोक के जो हिदायत जारी की गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए, जिसमें मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को ये जारी किया गया कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए ताकि जो मिट्टी के ज़रात और पार्टिकल्स हैं ये हवा में शामिल ना हो। इस इजलास में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस का 14वां कॉन्वोकेशन 63 तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। 1761 में डिग्रियाँ तकसीम की गई हैं। PhD स्कॉलर्स और पोजीशन होल्डर्स तलबा को मेडल्स और शील्ड्स भी दी गई हैं। डिग्री हासिल करने वाले तलबा अपनी कामयाबी पर इंतहाई खुश हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज में और यहाँ पर 14वें कॉन्वोकेशन में 1000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ दी गई हैं और गवर्नर पंजाब जो है वो तकरीब के मेहमान खुसूस से तो स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनको डिग्रियाँ हासिल करने पर कैसा लग रहा है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप बताइएगा किस में आपको डिग्री मिली और अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी युवात से जो है ये सेकंड डिग्री है। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, उसके बाद मैंने एमफिल किया तकरीबन 7 से 8 साल के बाद, और मैं एज ए प्रोफेशनल इस टाइम पे जो है मैंने यहाँ पे एमफिल किया और मुझे 8 से 9 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली डिग्री मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी में की है और इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मैंने अपनी रिसर्च और R&D इस टाइम पे जिस चीज़ की कंट्री को भी ज़रूरत है तो मैंने उस चीज़ के लिए जो है ना ज़्यादा फिर अपने स्किल्स एनहांसमेंट के लिए जो है मैंने रिसर्च में और इस चीज़ के ऊपर R&D के ऊपर काम करने के लिए मैंने एडमिशन यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ की फैकल्टी ने, यहाँ की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वाइस चांसलर ने, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने बहुत अच्छे लेवल पे किए जिसका कि इकोनॉमिकली भी कंट्री को भी फ़ायदा है और यूनिवर्सिटी को भी और इस फील्ड को भी फ़ायदा है। और बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अगर मैं युवास की बात करूँ तो इसमें
नॉट जस्ट एजुकेशन और थ्योरेटिकल बल्कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छा है और जो कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए और इन एनवायरनमेंट जिसमें हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रही हैं, आपको हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत से डिफरेंट जो हैं आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एंड आल्सो फॉर द प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, यहाँ पर जिन तलबा ने पहले प्रोफेशनल जो है लाइफ शुरू कर चुके हैं उन्होंने भी डिग्रियाँ हासिल की हैं और यूनिवर्सिटी की तालीम और दीगर जो सहूलियात उसके हवाले से बता रहे थे। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको डिग्री मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और युवास के साथ मेरा ताल्लुक़ 6 साल से है। मैंने पहले ग्रेजुएशन यहाँ से की है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी बीएस की भी और अभी एमफिल की भी मेडलिस्ट हूँ। एमफिल की जो मेरी डिग्री है वो जेनेटिक्स में है बेसिकली और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो जीन एडिटिंग के अंदर है। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो तलबा तालिबात हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की है, मेडल हासिल किए हैं, आज के दिन बहुत खुश हैं और अपनी कामयाबी का सेहरा जो है अपने वालिदैन टीचर्स के सर ठहराते हैं और उनका कहना है कि प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करना चाहते हैं और कुछ तलबा जो है मज़ीद तालीम जो है उसका सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। खबर है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बागवानपुरा में सालाना नुमाइश 2023 का एहतमाम किया गया। तालिबात का कहना था तालीमी इदारों में नुमाइश लगनी चाहिए ताकि हम अपने हुनर और महारत को उजागर कर सकें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बागबानपुरा में सालाना नुमाइश का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि यंग आर्टिस्टों के काम को जो है वो यहाँ पर आवेज़ा किया गया है और ख़ूबसूरत किस्म के जो डिज़ाइन और पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। ऑयल पेंटिंग, शेडिंग पेंटिंग का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो तालिबात जो हैं वो इसमें भरपूर हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने आज क्या बनाया है। जी हमने यहाँ पर एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें मतलब जिस तरह के इधर स्टिल लाइफ्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंसिल्स की स्केचिंग है, ऑयल पेंट्स हैं। ऑयल पेंट पे हमने लैंडस्केप पे कंपोजिशन वगैरह बनाई हैं और इसके अलावा बहुत सी स्टेंसलिंग है और लिनन कर्ट है। इसमें हर चीज़ आपको इधर दिखाई जाती है। तक एग्जीबिशन हर साल करनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एग्जीबिशंस जो हैं वो करनी चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। जी बताइएगा, आपने आज क्या पेंटिंग बनाई है? हमने यहाँ पर कॉम्पोजिशन, लैंडस्केप्स और स्टिल लाइफ्स और पोर्ट्रेट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हमने यहाँ पर लाइनों कट, वुड कट का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा स्टिल लाइफ्स भी हैं और इसके अलावा यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीबिशन का इसलिए एहतमाम भी किया ताकि आर्ट को पाकिस्तान में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबात ने जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग बनाई है, मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल किए गए हैं और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि तलबात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सके। ठीक है, सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं कि मार्केट में गिराव फरोशी का राज, इंतजामिया बेबस, सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हैं। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी जेब पर भारी है। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 499 रुपये पर बरकरार है। अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइए। आज बिल्कुल, आज सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए और पोल्ट्री मसनूआत के नरखों पर बात की जाए तो 6 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो तो अब एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। अदरक की कीमत शहरियों से 780 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जा रही। मजमूई तौर पर 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। फलों की सूरत हाल भी यही है कि शहरी जो है वो फल की कीमतें पूछ कर चले जाते हैं लेकिन फल ख़रीद नहीं सकते क्योंकि सेब 400 रुपये फ़ी किलो है, अनार बदाना 950 रुपये और अंगूर 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री मसनूआत में बात की जाए तो ब्रायलर जो है उसकी कीमतें 499 यानी कि 500 रुपये फ़ी किलो तक जो है मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह अंडे जो हैं वो 331 रुपये सरकारी रेल इसमें, लेकिन मार्केट में अंडे 340 रुपये यानी कि 29 से 30 रुपये तक फ़ी अंडा जो है वो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में, इनसे बात करते हैं। अरसा दराज से देख रहे हैं, कभी हमने 20 रुपये किलो टमाटर लेते थे जो अब आज 120 रुपये किलो बने हुए हैं। इतनी महंगाई है। प्याज, टमाटर, आलू देख लें 600 रुपये का दड़ी है, 120 रुपये किलो जो खाली 20-30 रुपये किलो वाली आइटम है। मूलियाँ, टमाटर जो भी ले लें, ये अभी मैंने सिंगाड़े लिए हैं, ये जो वो छप्पड़ की आइटम है जो पानी में होती है, ये 700 रुपये तड़ी, 140 रुपये किलो। देखें कितनी महंगाई ऊपर चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। फल देखें, ये अनार जो है वो 300 रुपये 400 रुपये किलो बिक रहा है, केला 130 रुपये 40 रुपये बिक रहा है।
देखें सेब जो है वो 250-300 रुपये 400 रुपये किलो तक, इतनी महंगाई है कि आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। आज बिल्कुल आपने जो है शहरी की गुफ्तगू चुनी, इनका कहना है कि सरकारी रेल इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, हर एक अपना रेट है और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी की लिए जो ख़रीदारी है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। खबर है कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अफसरान का आशालम मार्केट का दौरा, आशालम मार्केट के ताजरों से मुलाकात में मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई, जबकि पैच वर्क और तजावुजात के हवाले से मसाइल को हल करने की यकीन दहानी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइएगा। आज बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन राफे हैदर की हिदायत पर अफसरान ने आशालमी मार्केट का दौरा किया है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद और एमओ रेगुलेशन इकबाल खान की शालम मार्केट ताजरों से मुलाकात हुई है। ताजरों ने चीफ ऑफिसर एमसीएल को शालम मार्केट में दरपेश मसाइल के बारे आगाह किया। इस वाले से चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल की हिदायत के मुताबिक शालम मार्केट में दौरे के हवाले से बताया, जिसमें पैच वर्क तजावुजात के हवाले से ताजदार की ख्वाहिशात और मसाइल को हल किया जाएगा। चीफ ऑफिसर का कहना है कि शालम मार्केट में मुआशी सरगर्मियों के हवाले से अहम मुकाम है, जबकि मार्केट से हज़ारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। मुतलका ज़िम्मेदार अफसरान को शालम मार्केट को रोजाना की बुनियाद पर दौरा करेंगे और जहाँ कि यहाँ पे तजावुजात के हवाले से कैंप भी लगाया जाएगा और खास तौर पर जो पैच वर्क है उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे। और जबकि ट्रैफिक जो मसाइल हैं उस ट्रैफिक की रवानी के हवाले से ताजरान जो है वो अफसरान के साथ ताउन करें, जो यहाँ पे अमला है उनके साथ ताउन करें, ताकि जो इस वक्त शालम मार्केट में जो बढ़ते मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।